آخر تک ہم اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ. سارے ہمارا تمہیں دینا پڑے گا حق ہمارا، تمہیں دینا پڑے گا حق ہمارا. ہم چین کے رہیں گے حق ہمارا، ہم چین کے رہیں گے، ہم چین کے رہیں گے. اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں. انشاءاللہ ساتھی بالکل ثابت قدم رہے، منزل ہماری بہت قریب ہے. انشاءاللہ منزل ہماری بہت قریب ہے، بہت جلد ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہے انشاءاللہ. ساتھیوں سے گزارش ہے ایمبولینس کو جگہ دیجیے. جو ہمارے پیشنٹ ہیں ان کو آپ جگہ دیتے رہیں. ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، ہم ٹیچرز ہیں، ہم قوم بنانے والے لوگ ہیں، ہم تعلیم ادب دکھانے والے اور سمجھانے والے لوگ ہیں. آپ مریض کا راستہ چھوڑ دیجیے، ایمبولینس کو جگہ دیجیے. باقی بیٹھے رہیے. شکریہ. باقی بیٹھے رہیں. اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں مولانا باقی سنزری صاحب سے بیٹھ جائے، روڈ نہ کھولے. ضلع زیادہ سے تشریف فرما ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے. مولانا ضیاء الحق سنزری. راستہ نہیں کھولنا ہے کسی سی ٹی ایس پی ٹیچرز وان. تعلیم دشمن ہر دستور، تعلیم دشمن ہر دستور، تعلیم دشمن پالیسیاں، تعلیم دشمن پالیسیاں. حق دو بھائی، حق دو، اساتذہ کو حق دو، حق دو بھائی، حق دو. اساتذہ کو حق دو. آپ سے مخاطب ہوں گے مولانا ضیاء الحق سنزری. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر CDSP شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس، چونکہ یہ ایک کوئی سیاسی شو نہیں، ہم آج اپنے نظریات یا اپنے کوئی افکار بیان کرنے نہیں نکلے ہیں، بلکہ اپنے حق لینے کے لیے وقت کے حکمران کے سامنے بیٹھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے استدعا کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں. اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں آپ تعلیم یافتہ اور اہلیت سے سرشار لوگ. السلام علیکم ناظرین، موجود ہوں میں اس ایوان کے ساتھ جہاں پہ بلوچستان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، مگر یہاں پہ ہمارے نوجوان اس وقت سراپا احتجاج ہے. پورے بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹ سے پاس کینڈیڈیٹ سی ٹی ایس پی کے تھرو وہ یہاں پہ آج سراپا احتجاج ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں یہ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین مختلف ڈسٹرکٹ سے یہ آئے ہوئے ہیں. اس وقت تک ڈیلیگیشن گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی ڈیلیگیشن یہاں نہیں آئی. حتیٰ کہ یہاں پہ ان کے پاس یہ پیغام لایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک کمیٹی اس اسمبلی میں آ جائے. کیا یہ اسمبلی کا فاصلہ اتنا دور ہے کہ آج ہمارے بلوچستان کے سپوت، بلوچستان کی کریم، بلوچستان کے نوجوان اس لائق نہیں کہ یہ چند قدم کے فاصلہ طے کر کے کچھ منسٹر صاحبان آ جائے اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے؟ مگر ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا. 2 سے 3 ہزار کی تعداد میں تقریباً یہاں پہ لوگ موجود ہیں. مطلب یقین مانے اس وقت کوئی ایک شخص یہاں وزیر اعلیٰ کی جانب سے یا اس ایوان کی جانب سے کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں آیا ہے. اس حوالے سے یہاں پہ موجود ان کے رہنماؤں سے بات کریں گے. ہمارے
ये हम आपके सामने जो खड़े हैं ये आल बलूचिस्तान सिटी एसपी शास्त्री टीचर फोरम से खड़े हैं। ये आप लोगों के सामने जो ये सारे सरापा एहतजाज नौजवान नज़र आ रहे हैं, इंतहाई काबिल और तालीम याफ्ता लोग हैं। और ये जो आए हैं बलूचिस्तान के दूर दराज से आए हैं, तुरबत, पंजगुर, गवादर, शेरानी, जोबा और चमन से होकर यहाँ पर आए हैं बलूचिस्तान के दूर दराज से। अलमिया ये है, हमारे ये जो सियासी वर्कर्स है, सियासी जो रहनुमा हैं, वो बार बार ये दावे करते रहते हैं कि हमने बलूचिस्तान को तरक्की देना है। बलूचिस्तान को आप लोग खाक तरक्की देंगे जब उनको तालीम नहीं दिया जाएगा। तालीम के मैदान में आला PhD होल्डर्स, MA होल्डर्स और ये 7 साल से अल इजरा कॉलेज के लेक्चरर्स और वो GV पर सिलेक्ट हो चुके हैं, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। वो अगर आपके बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते तो कौन पढ़ा लेंगे? हाँ, हमें ये भी पता है कि इस टफ टेस्ट में, सख्त टेस्ट में वो लोग फेल हुए हैं जो वो जिनके बड़े लोग जो यहाँ डायरेक्टरेट वगैरह बैठे हुए, सेक्रेटरीट में बैठे हुए, वो जो है ना वो ये चाहते नहीं कि आर्डर उनके हो जाए। जी, ये जो लोग आए हुए हैं, जो बहुत सारे दोस्त दूर दराज से आए हुए हैं, ये बहुत सारे नौजवान हैं, अभी तक वो आए नहीं, वो आने वाले हैं। और हमने ये फैसला कर रखा है, ये हमने ये फैसला कर रखा है, जब तक कि हुकूमत की तरफ से कोई काबिल तसल्ली, काबिल इत्मीनान हमें तसल्ली नहीं दी जाती, हमारा काम बढ़ाया नहीं जाता, उस वक्त तक हमने हटना नहीं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई काबिल तसल्ली बात हमारे सामने नहीं आई। अभी तक कोई किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार ने हमसे कोई राब्ता तक नहीं किया, न कोई काबिल तसल्ली बात कही है। बराए नाम कल के दिन वज़ीर तालीम ने खुद ही कहा था आ जाएँ, आज ही के दिन उन्होंने कहा था आ जाए, बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर ले, एहतिजाज कर ले। उनको ये एहसास है, वो ये कहते हैं, चाहते हैं कि इन नौजवानों को यहाँ पर आने पर मजबूर किया जाए, इन नौजवानों को यहाँ पर रुल करके रखते, यहाँ पर वो सड़कों पे निकले और ये अपने तालीम के लिए, ये नौजवानों के नस्ल के लिए, नए नस्ल के लिए वो रोडों पे आ जाए। अफसोस की बात है, बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान के साथ ये जुल्म हो रहा है, विफाकी सतह पर विफाक की तरफ से फंड नहीं मिलते। अभी करीब ही में एक जस्टिस गुलजार कौसर साहब सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं ना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, वो आए थे, उन्होंने खुद ही बताया था बलूचिस्तान में 80% जो बजट है वो खाया जाता है। बलूचिस्तान में 80% ये जो बजट है ये हमारे सियासी लोग खाते रहते हैं। तालीम पे इतने पैसे आए हैं ये कि वो जस्टिस गुलजार साहब खुद कहते हैं कि इस बजट से तो हर स्कूल 5 स्टार बन सकता है। लेकिन हमें पता है, अभी ही चंद ही दिनों में हमारे बलूचिस्तान के एक मीडिया ने एक स्कूल का वो बताया था कि उनके छत बिल्कुल गिरने को है। अभी हमारे बच्चों पर वो गिर जाएगा तो फिर हमें तालीम दिलाने का हमें क्या फ़ायदा? वो मर जाएंगे, घरों में जनाजे जाएंगे तो हमें तालीम देने का फिर क्या फ़ायदा? और ये नौजवान आला तालीम याफ्ता नौजवान जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे, उनको कुर्सी पर बैठना चाहिए, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको बच्चों को आगे लेके जाना चाहिए। हाँ, हम तो ये कहते हैं, बड़े फ़ख्र से भी कहेंगे, हाँ हमने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बलूचिस्तान के नौजवान ये दुश्मन के बच्चे हैं? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको कुर्सी पर जो उनका हक है, जीवी पर जो सिलेक्ट हो चुके हैं, क्या उनका हक नहीं बनता कि वो उनको कुर्सी पर बिठाया जाए? क्या हम दुश्मन के बच्चे हैं? हमारे नस्ल दुश्मन के बच्चे हैं, उससे भी कमतर हो गए। अफसोस की बात है, इस जैसे हालात में हम निकलते हैं कि ये बहुत दूर दराज से आए हुए हैं और ये अपने हक ही के लिए लड़ते हैं। हमने दफ्तरों का बड़ा चक्कर लगाया, हमने डायरेक्टरेट को भी देखा, हमने सेक्रेटरीट को भी देखा, हम वज़ीर तालीम से भी मिले और ये झूठी तसल्लियाँ देते रहे। वज़ीर तालीम ने 4 दिन की बात कही, कमिश्नर ने क्वेटा डिवीज़न के कमिश्नर ने ये 1 हफ्ते की बात कही। डायरेक्टरेट वाले कहते हैं काम हो रहा है। कब तक हो रहा है? ये कब हमारी आवाज़ जो है ना वो उनके कानों तक पहुंचेगी? वो कब अपने कानों से ये रोई निकालेंगे और ये कब हमें अपना हक दे देंगे? हम किसी गैर से कोई उनका हक छीनने नहीं आए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम उस वक्त तक लड़ने को अपना हक समझते हैं जब तक कि हमें आर्डर नहीं दिया जाता। हम बिला वजह बग़ैर झूठी तसल्लियों से हमने मुतमईन नहीं होना है। हमने अगले मरहले में ऐसे हम अपने दोस्तों को
दूर दराज से लेके आए हैं, उनके मेहनतों पर हमने पानी नहीं फेरना, हमने उनको ये तसल्ली देकर आर्डर देकर हमने वापस घरों को जाना है। हम कभी भी ऐसा समझौता कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को ये दिल शिकनी हो और वो जो है ना दिल आज़ार हो जाए, उनके मेहनतों पर पानी फेरे। ये क्या तुर्बत से आने वाले उनके तकलीफ नहीं होती जो यहाँ आते हैं। हम भरपूर अपने नौजवानों को लीड करना चाहते हैं। हमारे लीडर मुखलिस है, हमारी क़यादत मुखलिस है और उस वक्त तक लड़के रहेंगे जब तक कि हमारा हक नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यहाँ पे इनके रहनुमाओं की जो लहजा है वो इस वजह से है कि यहाँ पे उन्होंने तकालीफ देखी है, उनकी तकालीफ आपके सामने है। 10 दिन से इनका एहतिजाजी कैंप, इसके बाद यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे जहाँ इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए कुछ लोग आए हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा वकील है। मैं पहले HDP में हुआ करता था, सीनियर वाइस चेयरमैन था, मैं साबिक़ काउंसलर भी हूँ। आज इन दोस्तों के जलसे में, एहतिजाजी जलसे में मैं शिरकत करने आया हूँ। आप सबको पता है कि किसी भी कौम के लिए तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौम के ज़िंदगी में जितने भी शोबे हैं उन सब से अहम तालीम है। और अफसोस की बात यह है कि इससे पहले भी इस नई हुकूमत में जो भर्तियाँ हुई हैं वो ठेके पर दिया गया था, वो भी सारे नाइंसाफ़ी हुई है दोस्तों के साथ। और आपको पता है कि गुज़श्ता 15 बलोचिस्तान में मेरिट की बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं हुई है।